Hello viewers, welcome back to our channel and to season 2 of the Nation Pod Talk. We are thrilled to kick off another exciting season where we bring you inspiring guests from all walks of life, from sports legends to artists, entrepreneurs and changemakers. Today we have a multi-talented guest, the vibrant and dynamic Namita Sachdeva. She's a sports presenter who brings stadiums to life and an actor who lights up the screen with her presence. From high-energy match day, whether it's on the sidelines of a tense match or in front of the camera for a film or series, Namita captivates audiences with her energy, charisma, and professionalism. From breaking down match moments to portraying powerful characters on screen, she has built a career that beautifully blends entertainment and storytelling. We are thrilled to have her here to share her journey, experiences, and the passion that drives her. Hosting this episode is our beautiful host Sandeep Kaur. Hello everyone, welcome back to another exciting episode of the C Nation Pod Talk. Today we are joined by someone who is powerhouse of talent. Someone who brings charisma both in front of the camera and behind the mic. She has graced your screen as a powerful and dynamic sports presenter. Welcome to ever energetic and multi-talented Namita Sachdeva. Welcome to the show, Namita. I'm really excited to have you on the show and especially you giving us your time for this podcast, and I'm truly grateful. And seeing your all the videos and all the interviews you have done, you're such an inspiration, and the way you connect with your audience and the participants is beautiful. Your energy is truly infectious, and I'm really looking forward to know your journey. And as I start this, I want to know that how are you doing today? I'm absolutely fine, sweetheart. Firstly, thank you so much for giving such a wonderful and beautiful introduction. अपने बारे में इतना सुनने का opening में मुझे आदत नहीं है, because with every artist, I am the one who's giving the introduction. So मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था अंदर से. तुम जानती भी नहीं हो कितना. And I wanna say sorry to you guys because मैंने इतना लंबा आप लोग मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे थे कि कब टाइम मिल सकता है, कब टाइम. तो मुझे ऑड भी लग रहा था कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज बैक टू बैक मेरे शूट्स चल रहे थे, प्लस कुछ न्यू चीजें डेवलप हो रही हैं, तो उसके एडिटिंग एवरीथिंग एंड मैनेजिंग द टीम इज लाइक टास्क टू मी. सो यस, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग नाउ वेल एंड आई एम डूइंग एब्सोल्युटली गुड. यू आर सिंपली गॉर्जियस. You are. I think Beautiful. you are so kind and you're so humble that you are complimenting me. You are so beautiful, Namita, and so confident on the top, and still you're complimenting me. That's the beauty of how beautiful human you are, Namita. So, Namita, I am curious to know that how did this journey started and who inspired you to become a presenter, and basically the journey. Okay, so the journey started from my college. मतलब like कहाँ से शुरू करूं मैं तो हमेशा सवाल पूछती हूँ, आज जवाब देने का मौका मिला है. मैं ना यही सोच रही थी, बिकॉज वन ऑफ योर पार्टिसिपेंट वाज सेइंग कि आप ना बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछते हो. जिमी शेरगिल आई थिंक वाज सेइंग कि आप मेरे से ये क्वेश्चन जानना चाह रहे हो, ये आंसर, बट उन्होंने फिर भी वो आंसर को ट्विस्ट कर दिया कि नहीं यू नो कि जो लोग. That was सुमेध मुदगलकर. I asked him प्यार के बारे में, प्यार क्या है आपके लिए, because I knew कि he was dating somebody and चलता रहता ना यार एक्टर्स की, सब किसी की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी होता होगा ऐसा, है ना. लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, but he was like very smart. He said कि आप मुझसे पूछ लो, मैं बताऊंगा नहीं, फिर भी कोई बात नहीं. तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं तो फिर भी पूछूंगी तुझसे, है ना. तो well, you asked about my journey. Thank you so much for asking that wonderful question in the starting. The journey started just like that. मुझे लगता है लाइफ की जर्नी हो या आपके करियर की जर्नी हो, जो होना होता है वो होता ही है. I was actually working in print media after my graduation was completed. So I wanted to buy a car. मुझे गाड़ी खरीदना था. This was, if you don't mind, can I ask which year it was? It was, यार year तो मुझे याद नहीं है वैसे, but around like 2008 के बाद की बात है ये. That 2008. Okay. Yeah, I wanted to buy a car. तभी मैं मेजर मतलब हुई थी, तो मुझे लगा यार गाड़ी लेनी है, गाड़ी एक्साइटेड होते हैं ना बच्चे. तो मम्मी को बोला
तो मम्मी ने कहा कि जब तू पहला जॉब करेगी ना तो मैं तेरे को गाड़ी ले दूंगी, फिर उससे ही तो अपनी इंस्टॉलमेंट भरना, बिकॉज वी मिडिल क्लास पीपल यू नो, ऐसा होता है। सो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने इंडिया टुडे में मैं इंटरव्यू देने गई और मेरा सिलेक्शन हो गया जस्ट लाइक दैट, राइट, इन सम प्रोग्रामिंग बेस्ड एग्जीक्यूटिव टाइप लेवल पे। वहां पे जब मैं गई, एंड ट्रस्ट यू मी, मेरे अंदर कोई स्टाइलिंग फैक्टर नहीं था तब, कॉलेज से निकले बच्चे थे ना, और मुझे पता नहीं था कैसे कपड़े पहन के जाना है कैसे नहीं। बट व्हेन आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, तो वहां पे सब जितने भी फीमेल स्टाफ के लोग थे और मेरे जो बॉसेस थी या थे, दे यूज्ड टू टेल मी तुम इतनी ठीक ठाक दिखती हो, अच्छी दिखती हो, तुम ना टीवी इंडस्ट्री में जाओ, तुम ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाओ, तुम बहुत अच्छा करोगे। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक ओ, फर्क ही नहीं पड़ता था मुझको ना, मैं अपना काम करती थी, ठीक है। बट वन डे वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड मी टू गिव जर्नलिज्म का पीजी डिप्लोमा टाइप निकला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसने बोला चल एग्जाम देते हैं ना। तो मैंने तो पढ़ाई वढ़ाई की नहीं थी उसकी, मतलब स्कूल में मैं अच्छी थी एकेडमिकली, आई वाज गुड बिकॉज मैं काफी जिद्दी रही हूँ शुरू से, तो टॉप किया है उसमें स्कूल में, कॉलेज में भी अच्छी रही थी, ऑलवेज फर्स्ट डिविजन्स एंड लाइक पोजीशंस आई गॉट। तो वहां पे मैंने बोला यार तैयारी तो की नहीं, अब कैसे दूं एग्जाम। तो मैंने उसी की अपनी फ्रेंड की चीटिंग करके एग्जाम दे दिया और उससे ज्यादा मार्क्स भी आ गए मुझे जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा। बट ये कैसे हुआ, उसकी चीटिंग करके आप? यार पता नहीं, मैंने पूरा पेपर टेप के, लिटरली उसका टेप के दिया था, यू अंडरस्टैंड द वर्ड टेप ना, गॉड साइड दैट टेप। मैंने उसकी शीट्स छीन के, अगर आज हमारी टीचर देख रही होंगी ना इसको, बाय एनी हाउ एनी चांस शी विल बी एम्बैरेस्ड इधर कि ऐसे बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया है ना। और खैर कोई बात नहीं, शी विल बी हैप्पी कि आप आज इस पोजीशन पे हो, आप आज इस पोजीशन पे हो, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। डेफिनेटली नहीं कोई पोजीशन नहीं है यार, वी आर लर्नर्स ओनली, एवरी डे वी आर लर्निंग अ न्यू थिंग। सो मेरे को जब मैं, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, मुझे लग रहा था यार व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस नाउ, एम आई एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू। मैं तभी हाँ नहीं कर रही थी, आपको पता है नमिता, आप हमेशा ऐसे ही बात करते हो, लाइक मैं ऐसी हूँ बिकॉज मुझे लगता है यार व्हाट गॉड हैज गिवन यू, आपको उसका थोड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। आई थिंक आप आसपास में सबको हंसाते रहते होगे ऐसे यार, वो ना मेरे मतलब मैं कोशिश नहीं करती हूँ, नेचुरल हो जाता है, राइट, ये नेचुरल फ्लो है कि मेरी बातों से लोगों को हंसी आ जाए। और आजकल लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, ट्रू। आप किसी को हंसा पाओ अगर अपनी बात से, या आप इतने क्वर्की हो पाओ, या आप किसी को स्माइल देके ग्रीट भी कर दो ना, दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ। ओके, कमिंग बैक टू माय जर्नी, वहां पे एग्जाम दिया, इंटरव्यू, डिस्कशन राउंड सब क्लियर किया, एंड वो 1 साल का पूरा डिप्लोमा कोर्स किया। वहीं पर हमारी प्लेसमेंट्स हुई थी एज एन एंकर। एक तो कोई रियल एस्टेट का लाइफस्टाइल का चैनल था, वहां से लोग आ रहे थे वो लेने ऑडिशन। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन में बोला गाना गा के सुनाओ। आई वाज लाइक गाना गा के, ये कैसे होता है ऑडिशन में? बट आई वाज कॉन्फिडेंट। तो सामने तो थोड़े लोग खड़े हुए थे, आई वाज वेरी यंग। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं गाना गा देती हूँ। गाना गा दिया, बाहों के दरमियान, मुझे याद है खामोशी फिल्म का। तो गाना गाया, एंड माय बॉस, एक्स बॉस, who I used to call दादा, जो कॉलेज में हमारे सिलेक्शन के लिए आए थे, he selected only one girl. He took auditions of so many girls, but selected only one. मतलब एक और थी लड़की जिसको सिलेक्ट किया था, बट वो बाद में उन्होंने वो छटाई टाइप करते हैं ना कुछ बाद में चैनल में भी। So then they selected me as an anchor. So that's how my journey started as an anchor. Right. After that तो obviously आप एक से दूसरे चैनल्स में जाते हो। तो फिर अब एंकरिंग से एक्टर कैसे बने? लाइक वो भी एक मेरी क्यूरियोसिटी है, वो जर्नी कैसे एकदम ड्रिफ्ट कैसे हुआ? बिकॉज जनरली मैंने देखा है कि जो प्रेजेंटर होते हैं या एंकर होते हैं, वो जनरली दे प्रेफर टू स्टे इन दैट फील्ड, एंड देन यू गॉट इनटू एक्टिंग फील्ड। हाउ डिड दिस हैपन, दिस ट्रांजिशन? यार ये तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री जो है ना हमारी, दिस इज लाइक, ये तो क्रॉस प्रमोशन यहाँ पे तो हो ही रहा है ना, और ये एक्टिविटीज तो चलती रहेंगी। यू सी सो मेनी एंकर्स एंड प्रेजेंटर्स आर नाउ बीइंग एक्टर्स। लुक एट कुब्रा सेठ, है ना, शी केम टू बॉम्बे, शी वांटेड टू बिकम एन एक्टर, बट शी वाज अ वेरी गुड एंकर एज वेल। तो मुझे लगता है कि यार गोइंग विद द फ्लो इज वन थिंग दैट यू शुड नॉट लीव। बस वो कहीं ना आप में एक एक्टिंग का कीड़ा तो होता है। जैसे बचपन में ना, मैं जब शीशे के आगे खड़ी हूँ, तो मुझे आज भी नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट, कि आई एम एन, मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्टर बोलती नहीं हूँ, ना मानती हूँ। मुझे लगता है यार एक्टिंग में बहुत कुछ है, इट्स लाइक एन ओशन, so you have to learn every day a new thing and it's a very difficult task। और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ या कर पाऊंगी। I'm always honing my skills as an actor, so I did an acting course and this and that, so many activities, we do scene works and everything, but then yes, अब एंकरिंग ये है कि आप कर रहे हो साथ साथ, तो
प्रेजेंटिंग तो करना ही है, that's inside me, that's in my DNA. तो वही है कि एक्टर की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट होती है. आई वाज टॉकिंग अबाउट कुबरा सेट, और आजकल तो एक्टर्स भी प्रेजेंटर्स बन रहे हैं. यू सी सो मेनी एक्टर्स आर डूइंग स्टेज. करण वाही, मैं उनके साथ काफी बार स्टेज होस्ट कर चुकी हूँ. ही इज एन एक्टर एंड अ वेरी फाइन एक्टर. And even Ritvik Dhanjani, if you see, he's hosting so many reality shows as well. Even some other actors, नाम नहीं मुझे इस वक्त याद आ रहे, but बहुत से actors कर रहे हैं. So it's nothing like कि presenters actors नहीं बन सकते. They can always try new things. And I'm always keen and open to trying new things. Right. और नमिता ऐसा होता है जैसे यू गो फॉर अ बिग गेम और उसके लिए लाइव पॉडकास्टिंग के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, और उसमें और एक्टिंग में कोई सिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन? हैव अ बिग गेम टू प्रेजेंट, राइट? यू आर एक्टिंग एज अ प्रेजेंटर एंड देन यू हैव अ सीन ऑन स्क्रीन एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट सीन. तो उस दोनों की प्रेपरेशन में कितनी डिफरेंस है, या इट्स वेरी सिमिलर लाइक प्रेपरेशन? Yeah, देखो, one thing is similar, that you have to face the camera. Right. Only this thing is similar. The emotions, the research, how you are going to present as an anchor, as an actor. ये दोनों बहुत अलग-अलग चीजें हैं. और बहुत अलग-अलग ही इनको प्रिपेयर करना पड़ता है. Because if as an actor I talk about, I've seen so many actors and I talk on daily basis to these actors. Because I'm taking interviews and I'm talking to them, interacting with them, doing conversations because I love driving conversations, है ना? जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है बचपन से. तो हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आप conversations आप जानने की कोशिश कर रहे हो, curiosity है आपके अंदर. So being an anchor and actor, two things are common. One is camera facing, another is you should have the curiosity to do things. Right. मतलब आपके अंदर जानने की वो जो उत्सुकता होती है ना, the excitement to know something, और यार क्या नया होगा, वो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्टिंग में मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट एज एन एक्टर, कि आपको हर इमोशन को सही तरीके से पोर्ट्रे करना है स्क्रीन पे. व्हाटएवर इज सीन इज बीन गिवन टू यू, आपको उस सीन में पूरी तरह से उतर के काम करना है. उसमें आपके डायरेक्टर आपको बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन कैमरा एज एन एक्टर, यू आर द डायरेक्टर्स एक्टर. यू आर नॉट समबडी डूइंग समथिंग ऑन योर ओन. बट एज एन एंकर इट्स डिफरेंट. You are doing everything on your own if there is no director. जैसे कई बार होता है ना इंटरव्यूज में, हम जा रहे हैं, I am the only person who is going. कैमरा सेटअप दिया, मुझे सब कुछ खुद ही करना है, हेड टू टो. अपना रिसर्च भी खुद करके जाना है, सवाल भी खुद बनाने हैं, और वहाँ पे मेरे आगे मोबाइल फोन भी नहीं होगा जो मैं देख देख के सवाल पूछूं. So I have to drive the conversations on my own. तो मैंने ना 3 चीजें लाइफ में, मतलब जो मैंने कहीं बताई नहीं है, कभी मौका नहीं मिला, को किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया, कह सकते हैं. तो मैं 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखती हूँ. राइट. हाँ, इट्स लाइक क्या, क्यों, कैसे. ओके. क्या, क्यों, कैसे. ओके. क्या मीन्स व्हाट, क्यों मीन्स व्हाई, कैसे मीन्स हाउ. अगर ये 3 चीजें आपको पता है और आपके अंदर क्यूरियोसिटी है सामने वाले को जानने की, देन योर कॉन्वर्सेशन विल गो एब्सोल्युटली राइट. मुझे ऐसा लगता है. और जिनसे भी आप बात करने जा रहे हो, है ना, चाहे वो लाइक बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, चाहे उन्होंने कम काम किया है, एंड यू आर गोइंग टू टेक द इंटरव्यू, बी इट लाइक एनी फील्ड, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, टीवी और व्हाटएवर, और बिजनेस, बिकॉज मैंने हर जॉनरा टच किया हुआ है, तो पता है मुझे कि उसमें क्या करके जाना है. लाइक उनके बारे में रिसर्च करके जाना बहुत जरूरी होता है. यू कांट जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी एंड आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट. फिर आप क्यों, क्या, कैसे से बढ़ के आगे कुछ नहीं पूछ पाओगे जब तक आप उनके बारे में जानते नहीं. एंड वन मोर थिंग आई रियलाइज्ड इज, in today's time, journalists are trying to push, matlab I'm an entertainment journalist also, so presenters or journalists should know what their job is, what their like work is. They have to drive the conversations as well as they have to ask questions. So their questions should be crisp, interesting and not too long or too lengthy. है ना, जो इतने लंबे ना हो कि सामने वाले को सवाल ही समझ नहीं आया. तो आपको अपने हेड में वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोमेंट यू हैव क्लैरिटी, द मोमेंट यू आर काम एंड रिलैक्स थ्रू माइंड कि अच्छा मैं कर लूं, है ना, आई हैव दीस थिंग्स, देन यू आर गुड टू गो. तो आप कर लेते. राइट. नमिता, जैसे आपने ये चीज बोली कि आपको बचपन से ही कॉन्वर्सेशंस का बहुत था, बातें करने में बहुत मजा आता है ना, तो ये जो लेट्स टॉक विद नमिता, ये वहीं से ड्राइव्ड है या इसका कुछ विजन था आपका एंड सडनली इट स्टार्टेड, हाउ, मतलब ये कैसे आया आपको आइडिया?
यार ये बहुत सडनली शुरू हुआ, बिकॉज इससे पहले जस्ट पहले मैं एक ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन एक ब्रांड के साथ काम कर रही थी, जिनके साथ मतलब कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण मैंने वो जॉब छोड़ दिया। एंड ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आल्सो, बिकॉज मुझे लगा था, क्योंकि विद इन 6 months माय लाइफ एक्चुअली चेंज्ड, बिकॉज वहां पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई लॉस्ट माय मॉम आफ्टर 15 days ऑफ आई जॉइंड द चैनल। और उससे पहले जिस चैनल के साथ मैं काम कर रही थी उनके साथ मैं 6-6.5 साल काम किया था मैंने। अब जब आप एक नई जगह पे आते हो एंड यू लूज द मोस्ट लव्ड पर्सन और योर पेरेंट, और लाइक है ना, आपकी जिनके आधार पे आपकी जिंदगी टिकी होती है, बेसिकली दे आर द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम इन योर लाइफ, और उनको आप खो देते हो तो आपके दिमाग में कुछ तो रहता है कि यार मैं यहाँ पे क्यों आई, ऐसा। हालांकि मैंने कभी उनको शो नहीं किया था ये बात, बट वो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर कह लो, है ना, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहता है, और आउट ऑफ लाइक थोड़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी मैं उस वक्त। तो आई वाज नॉट एबल टू लाइक मैनेज एवरीथिंग, एंड बहुत दूर था, डिस्टेंस बहुत है बॉम्बे में ना, व्हेन यू आर स्टेइंग इन बॉम्बे, तो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको जाना है तो अगर आपका मान लो 10 मिनट का भी रास्ता है ना, तो वहां पे आपको जाने में कम से कम पी कार में 20-25-30 मिनट लगता है, एंड माय ऑफिस वाज वेरी फार, प्लस आई वाज नॉट एबल टू गिव टाइम प्रॉपर, मतलब कि पूरा टाइम मेरा उसमें जा रहा था, मुझे पर्सनली भी कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। बट जैसे मैंने बोला कि ड्यू टू सम क्रिएटिव डिफरेंसेस आई लेफ्ट द जॉब, एंड देन आई लाइक थॉट अबाउट कि यार इतने साल मैंने काम किया है, मतलब हो गए काफी, अब मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज मैं बुजुर्ग टाइप साउंड करूंगी, आप बिल्कुल बहुत ही यंग लग रही हूँ तुम्हें, सिर्फ यंग मैं नहीं, सीरियसली वेरी बैड। अरे बहुत, आपने बोला ना कि मैं, तो मैंने बोला कि आप बहुत ही यंग लग रहे हो, ऐसे तो लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल माय लव टू यू स्वीटहार्ट। आज मैं रात में ना मैंने शीशा देखा 100 बार, तो कह देना, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, है ना, कि शैली मैंने इतनी बार शीशा देखा सोने से पहले, और हाँ यार मैं यंग लग रही थी। आप तो बहुत मतलब मुझे बहुत दिन बाद कोई ऐसा इंसान मिला है जो मतलब जनरली सब मुझे बोलते हैं कि तू ऐसे हंसती रहती है बिना बात के, और मुझे आज कोई ऐसा मिला है जो सच्ची में हंसाता है। एक्चुअली हंसते तो आप हो ही, हंसाते भी बहुत हो। हाँ, मुझे कपिल शर्मा शो से भी कॉल आया था कि प्लीज मैम कम जॉइन अस, जॉइन आवर टीम, है ना। हाँ, बट सीरियसली मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, सच्ची आप खुद हंसते नहीं हो, बट सामने वाले को बहुत हंसी आ जाती है। तुमने मुझे देखा नहीं है हंसते हुए, यू वॉच माय इंटरव्यू, तुमने मेरे फिर इंटरव्यू से नहीं देखे। नहीं आप हंसते हो, बट आप सामने वाले को ज्यादा हंसा देते हो अपने हंसने से। लाइक एक बंदा होता है, जैसे मेरे जोक्स कैसे है ना, सामने वाले को हंसी नहीं आती, मुझे खुद बहुत हंसी आती है, बट आपके कैसे? दैट्स गुड ना, सामने वाले को भी इक्वली हंसी आती है, ऐसे बोल रही हूँ। वेरी नाइस यार, तुमने मुझे खुश कर दिया आज बिल्कुल। सीरियसली योर एनर्जी इज ब्यूटीफुल, मतलब थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। कमिंग बैक टू द आंसर, कि वहां से जब जॉब छोड़ते हो ना, तो जब आप ऐसा लात वात मार के छोड़ देते हो ना कि चल नहीं करनी है ना, ऐसे वाला है ना, पता लगा वो लोग भी इंटरव्यू देख रहे हैं, दोबारा कभी मुझे ऑफर नहीं करेंगे। अगर मैंने वहां से जॉब छोड़ी नहीं होती, then how would I be able to like start something on my own? True. So वो मुझे एक जो spark था वो शायद वहीं से मिला। Right. चलो start करती हूँ। Because I started my own platform. Like मैंने बहुत पहले कोविड के टाइम पे सब स्टार्ट करे थे, मैंने बोला मैं भी करूँगी, लेकिन फिर मैंने वो थोड़ा बंद कर दिया था, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी I was very serious and with the vision of having like creating something with AI also. So we are connecting with all the tech and everything in this. और अभी मैंने फिर ये प्लान किया कि यार अब करना है तो अपना करना है। जॉब नौकरी ये तो मेरी कुंडली में है ही नहीं, मेरे हाथों की रेखा में है ही नहीं। क्यों कर रहे हो फिर अब? क्यों किया? Whenever I work as a consultant only. Okay, not as a. और उससे क्या होता है, आपको अपने लिए भी टाइम मिलता है। So now I'm doing acting, टाइम मिल रहा है तो, है ना, and I'm doing anchoring, presenting, I'm doing entertainment journalism, I'm doing sports presenting, I'm doing lot of award ceremonies, I host that. So that means आपके कनेक्ट्स भी बढ़ते हैं, आपका होराइजन भी ब्रॉड होता है, आपको अपने लिए भी टाइम मिलता है, और नाउ द फीलिंग ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यू नो, इज लाइक अनदर लेवल व्हेन यू आर हैंडलिंग अ टीम, ऑल्दो इट्स अ टास्क, यू नो, कि बहुत बड़ा टास्क है कि आपको एक पूरी टीम को मैनेज करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कभी कभी गुस्सा भी आता है, आप स्ट्रेस में भी आ जाते हो, और मेरे स्ट्रेस का तो ये बस्टर है ब्लैक कॉफी।
अच्छा ब्लैक कॉफी यू तो आज मेरे व्हाइट मग में आपको नजर नहीं आ रही, आई लव व्हाइट, पता नहीं चल रहा। हाँ, बिकॉज आई एम ऑन अ शूट ना, मैंने बताया ना आपको, यस यस आई एम यस सिटिंग एट समबडी एल्सेस प्लेस, राइट। मैंने बीच में ब्रेक लिया और मैंने बोला यार मुझे एक इंटरव्यू देना है, प्लीज करने दो मुझे, हाथ जोड़ के विनती। तो यस, तो दैट फीलिंग इज लाइक अनदर लेवल व्हेन यू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, इज लाइक वाओ, मतलब अभी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बट स्टिल ना I think the day will come. It's doing. I've seen the numbers. I think you are doing great, Namita. And अगर आप एक projection लेके चलोगे कि okay 1 year down the line, you see obviously you already like you are a star face already. और जब एक established face कुछ करता है तो उसको वो numbers तक जाना is very easy. I think आप बहुत जल्दी वहाँ hit कर जाओगे. If we talk about the algorithm, if I say it from the tech perspective, because I'm from tech background. Oh, acha, okay. Yes, Chain also. So I think you are doing wonderful. I think when something goes wrong ना मेरे channel या platform के साथ में, then I'll take your help. हाँ, anytime. In the Chain actually Chain मेरे से भी better है, मैं खुद Chain की help लेती हूँ. But yeah, can definitely. तो मैं सच में ना मांग ले, मैं जल्दी से बोल दूँ कि मैं Chain की help लेती हूँ. सच्ची कोडिंग मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा स्क्रीन के सामने बैठना, क्योंकि मुझे भी बातें करने में बहुत मजा आता है, स्पेशली मुझे ना बड़े लोगों से बातें करने में मजा आता है बहुत, जिनके पास एक बुजुर्ग लोगों से हाँ बुजुर्गों से मुझे बाय बाय डार्लिंग, आई एम नॉट बुजुर्ग, बाय नहीं ऐसे नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि अंदर से ना वेरी ओल्ड सोल, तो मुझे ऐसे एक मेरा टाइम ऐसा था जब मेरी बहुत ही स्पिरिचुअल वाली जर्नी चलेगी, बट नाउ आई एम बैक टू बीइंग नॉर्मल। अभी मैं फिर से उसमें आ गई, तो या बैक टू बीइंग माय टेक जर्नी, बट वी आर विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद द टेक आल्सो, कभी एनी टाइम लेट्स कॉल अस। And my next question will be that you are also starting this brand Ladies Lounge, तो आप उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को अगर बताना चाहो नमिता। ये खरीदा हुआ सवाल लग रहा है मुझे वैसे, है ना? नहीं अरे यार खरीदा हुआ सवाल नहीं, बिकॉज मैंने आपका लेस टॉपिक एदा पंजाबी च बोल रहे हैं ना, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਮੁਕੇਰੀਆ ਤੋਂ। ਮੁਕੇਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। I am born and brought up in Delhi and now I'm staying in Bombay. My ancestors are from Punjab, you know. But seriously ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕੁੜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। But there is a role of so many people out here who speak very good Punjabi. They are very dear friends to me. So in Bombay, you know, Bombay में क्या होता है यहाँ पे ना, Bombay I call Bombay because I feel Bombay is an emotion and Mumbai is a city. ये बहुत जगह लिखा होता है, but मैंने उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना रखा है because I love Bombay. अच्छा पता नहीं, सीरियसली मुझे इश्क है इस शहर से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको बहुत कम नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलते हैं। बहुत सारे यहाँ पे मोस्टली गुजरातीज और मारवाड़ीज रहते हैं, तो उनके बीच में पंजाबी बोलने वाला भी मिल जाए, तो मतलब नथिंग लाइक इट ब्रो, लाइक दैट। सो मतलब अब तुम मिली हो बात करने, तो फिर मैं तो करूंगी ना बात। मैं एक बात बताऊं, मैं भी मेरी शादी इट्स अ लव मैरिज, तो मेरी भी मैं पंजाबी हूँ, बट मेरी शादी गुजराती के साथ हुई है। तो मैं भी तुम्हें बॉम्बे में होना चाहिए, you should come here. मैं जामनगर में हूँ, तो मैं पंजाबी बोलने के लिए तरस जाती हूँ कभी कभी कि कोई मेरे साथ तू मैंने कॉल कर ली कुड़ी, मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕॉल ਕਰਾਂਗੀ 100%। ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਚੈਲੰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੈਲੀ ਕਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰੀ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ 뮤직 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮੀ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਆਸਕ। ਸੋ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਸੇਫ। बट मैनू पता की लगता, मुझे क्या लग रहा है ना, मैं तो आप बहुत ही हम्बल हो एक्चुअली। आई थिंक एक ना हम्बल इंसान ही ऐसे बात कर सकता है। मैं ये बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रही हूँ जैसे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसको सब आता होता है ना, एक्चुअली वही बोलता है कि मुझे कुछ नहीं आता।
कहते हैं ना, वो पंजाबी में खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाता है और जो भरा हुआ होता है मेरी मम्मी भी वो कहती है। आवाज नहीं करता है. तो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन आई थिंक. कि आप ऐसे बोलोगे मुझे कुछ नहीं आता, बट what I can see from whatever I've seen on the internet, you're an amazing person and you're an amazing whatever job you're doing it wonderfully. And I am sure कि एक्टर भी आप बहुत ही उम्दा एक्टर होंगे. मैंने आपकी एक्टिंग स्किल्स देखने का मुझे मौका नहीं मैंने मिला, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा पोस्ट नहीं लगता किए हैं फॉर वैलिडेशन. राइट. बट सीरियसली आप यू आर बाकी तो सब चीजें एक साइड में हैं, बट यू आर अ ब्यूटीफुल सोल आई वुड से. इतने हम्बल, थैंक यू स्वीट. इतने हम्बल. मैंने इतने सारे लाइक स्पोर्ट्स पर्सन की इंटरव्यू की है, बट इतना हम्बल. मैं आपकी इंटरव्यू करने के टाइम बहुत नर्वस हो रही थी. मैंने आज अपने हस्बैंड को भी बोला कि आई एम फीलिंग बिट नर्वस टुडे बिकॉज इट्स नमिता's इंटरव्यू. लाइक इट्स फाइन, बी योरसेल्फ. बट मुझे नहीं पता था कि लाइक आपके साथ इतना इजी फ्लो में कॉन्वर्सेशन होगी और इतना मजा आने वाला है. इट्स नहीं यार, कॉन्वर्सेशंस मजे के लिए ही होनी चाहिए. ऐसा वो हो सीरियस टाइप कॉन्वर्सेशन नहीं होती है जो बोरिंग हो जाए. आप सामने वाले को बोर कर दोगे तो बात करने का मन ही नहीं करेगा ना. वो अगली बार बोलेगा कि मैं रहने दे. इट शुड कम आउट नेचुरली, यू नो, नेचुरली आना चाहिए. और ये हम्बल होना भी मैंने सीखा है. मतलब मैं शेयर करूं या ना करूं मुझे नहीं पता. ये कुछ वक्त पहले की बात है. मैं बहुत गुस्से में रहती थी. When I was in Delhi, I used to go on sets and I used to work in a shopping channel. तो वहाँ पे मैं स्टार हो गई थी. But you have to understand who is the star, है ना? You have to make a thin line between a star and a performer. Right. So I always keep myself at the level of a performer now. तो मैं वहाँ पे वो लोग मेरे को स्टार की तरह ट्रीट करते थे. अरे हीरोइन आ गई है तो भाई इसको कोई तंग नहीं करेगा. इसका सब कुछ अच्छे से. और मैं बहुत गुस्से में भी रहती थी. मतलब ऐसा कुछ ऐसा करके मे बी ऐसा हुआ होगा कभी. बट देन नहीं जाते हो. कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पहुंच जाते हो, आप सक्सेस आपको थोड़ी सी भी मिल जाती है. सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है. जितना आप हम्बल रहते हो ना लाइफ में, जितना झुके रहते हो, वो कहते भी है ना, मैंने पहले भी कहीं कहा था कि मेरी मम्मी कहती है कि जिस पेड़ की डाली के जो वो डाली जो है वो झुकी रहती है, उस पे फल अच्छे लगते हैं. तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी ग्राउंडेड, टू बी योरसेल्फ, एंड नॉट लाइक कि आपको थोड़ा सक्सेस मिल गया तो आप कहाँ पहुंच गए. बट अभी तो खैर सक्सेस में भी काफी कुछ अचीव करना है. सो इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी, यू नो. एंड I get to meet so many people who have achieved so many things in life. वो टॉप पे पहुंच चुके हैं. फिर भी when they talk to you, you don't feel like कि है ना उन्होंने इतना सक्सेस हासिल कर लिया है. तो I get to learn these things from my co-actors या मेरे जितने भी fraternity के भी लोग हैं जो एक पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, जिनके लिए मुझे लगता है कि यार मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है. So it's an advice to others also. like मुझे मैं सबको यही बोलती हूँ कि यार जितना भी पैसा कमा लो लाइफ में, जितना भी ऊपर बढ़ जाओ, बट हम्बल रहना इज वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू बी लाइक. राइट. बट मतलब मैंने वैसे तो जनरली ऐसे बहुत लोग, बट आपके जैसा कोई मैं बहुत देर बाद किसी से बात करी हूँ जो लगता है तुमने अभी आप जैसा कोई फिल्म देखी है. नहीं. अच्छा ठीक है. मतलब एक होता है ना, मतलब कि आजकल पता नहीं मेरी एनर्जी शायद ऐसी हो रखी है कि आई एम सिंकिंग विद दोज काइंड ऑफ पीपल कि जो अपने आप में बहुत है, जिन्होंने थोड़ा सा अचीव किया बट दे फील लाइक ओके हमने बहुत कर लिया, यू नो. ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, ऐसे बहुत लोग हैं. बट आई थिंक लोग तो दो तरह के हो सकते हैं. या तो ऐसे जो थोड़ी सी आपको सक्सेस मिली, आप यहाँ पहुंच गए, और ऐसे भी हो सकते हैं जो आप यहाँ पर हो लेकिन आप ये ऐसा कर रहे हो कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया. जैसे यू आर ऑलवेज अ लर्नर, यू आर क्यूरियस टू नो थिंग्स, है ना. बट आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह बनना है. आई थिंक वन डिफरेंस दैट यू कैन मेक इन लाइफ, या एक चीज जो आपको दुनिया से अलग करती है, वो क्या होती है? इज बीइंग यू योरसेल्फ. यू बीइंग योरसेल्फ, यस. आप ही खुद को दुनिया से अलग कर रहे हो ना, क्योंकि आप शैली का कोई पार्ट 2 तो निकल नहीं आएगा. शैली इज यूनिक इन हर ओन सेंस. दैट्स द थिंग कि आई ऑलवेज फील लाइक कि नमिता ही नमिता को खुद से अलग कर सकती है, दुनिया से अलग कर सकती है. तो आपको नमिता ही रहना पड़ेगा. Can't be anyone else. And don't try to be. Oh, that's the thing. That keeps you grounded. कि हाँ ठीक है. नमिता, एक मेरा मतलब ये क्वेश्चन लाइक इट्स नॉट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, इट्स जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन. लाइक आप इतनी खूबसूरती से बात कर रहे हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे. लाइक कभी कभी ऐसे जैसे हमें बहुत ऐसे लोग मिल जाएं जो यू नो आर नॉट ग्राउंडेड एंड हम्बल एंड विद जिनकी एनर्जी अपने साथ सिंक ना करती हो, उनकी वैल्यू सिस्टम ही अलग हो.
तो उनके साथ डील करने का बेस्ट वे क्या है? मतलब कभी कभी वो आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी एनर्जी को एकदम तोड़ के रख देते हैं ना, देन यू फील लाइक कि ओके यार, मतलब आपको बचपन से एक चीज सिखाई जाती है एंड योर पेरेंट्स कीप यू हियर, एंड सडनली कुछ लोग आके आपकी एनर्जी को ऐसे ब्रेक कर दें, एंड दे मेक यू फील लाइक कि यू नो नथिंग। तो उनके साथ डील करने का बेस्ट तरीका क्या है? But my question is, because I have a habit of asking questions, so my question is कि क्या ऐसा होना चाहिए? मतलब क्या किसी में इतनी हिम्मत या ताकत होनी चाहिए कि वो आपको तोड़ सके? नहीं ना? होनी नहीं क्या चाहिए। किसी में आपकी एनर्जी को अफेक्ट करने की ताकत होनी चाहिए? नहीं। आप में इतनी इन्फेक्शियस एनर्जी होनी चाहिए कि आप उस नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव करो। आप समझ रहे हो? मैं समझ रही हूँ आपकी बात। हाँ, तो आप इतनी इन्फेक्शियस एनर्जी रखो, इतना आप अपने अंदर वो रखो कि अगर सामने वाला आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है या आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी उससे इफेक्ट हो जाएगी, you just be yourself ना। आप तो ऐसे ही हो। जो You should not get affected. You should not let other people's affect you. Right. Your energy should be like that, right? हाँ, समझ गई। I got my answer. तो अपनी एनर्जी को आपको कैसे सही रखना है वो आपको देखना आपके मेरे ऊपर है। Right. I got your point. So और हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई लोग आपको इतने अच्छे लोग भी तो मिलते हैं ना लाइफ में, अच्छे लोग जो तो आपकी एनर्जी को और पॉजिटिव कर दे, 100% डबल एनर्जी भर दे। 100%। आप कई बार होता है कि जैसे कई बार होता है आप बहुत नेगेटिव फील करते हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करते हो रात के 2 बजे 3 बजे, बोलते हैं ना वो इज योर 3 AM फ्रेंड, वो आपकी एनर्जी अप कर देता है कि यार सब सही हो जाएगा। आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं। यू हैव टू चूज अमंग्स्ट पीपल कि आपको कैसे लोग अपने आसपास चाहिए। अब बिना लोगों के तो आप लाइफ नहीं जी सकते ना, बिल्कुल आइसोलेशन में अकेले हो। 100%। है ना? I have that way I have always been blessed with like मेरी ज्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा बूस्ट ही किया है, बट शायद आप सही बोल रहे हो कि I need to work on my energy as well, कि ये छोटी छोटी चीजें मुझे इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपने बहुत सुंदर किया कि किसी और में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए टू ब्रेक योर एनर्जी। rightly said. So which leads to my next question कि आप हमेशा जैसे बहुत ही पॉजिटिव रहते हो, बट जैसे ये स्पोर्ट परसेंटर ले लो या एक्टिंग की जर्नी ले लो नमिता, इसमें अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली हर करियर में आते हैं। तो जब कभी भी आपका कोई लो हिट होता है तो उस टाइम पे आप अपने को हमेशा ऐसे पॉजिटिव, और बस मैं अभी एंड कर देंगे जल्दी तो नहीं, मैं सामने बोल रही थी शूट में हूं ना, तो इसलिए। अच्छा, तो उसमें पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखते हो हमेशा नमिता? यार वो आपके एटीट्यूड में ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी इतनी है कि मैं अपनी नेगेटिव, और ऐसा नहीं होता है कि आप नेगेटिव फील ना करो, दिस इज ह्यूमन इमोशन। अगर आपको पॉजिटिव फील हो रहा है तो आप नेगेटिव भी फील करोगे। और ऐसे कई दोस्त लोग भी हैं लाइफ में, मतलब ऐसे हैं जिनको कई बार मैं रात में, मेरी एक बहुत बचपन की दोस्त है जिसको मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ, कभी भी कॉल करके मैं रो भी सकती हूँ उसके साथ, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली यू आर ह्यूमन बीइंग, यू विल ब्रेक डाउन, यू विल फील इमोशनल। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी बहुत इजी रही है, या हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आती है। मैंने जो आपको मोमेंट्स बताए व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, सो मुझे ऐसा लगता था लाइफ तो यार अब खत्म ही हो गई, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है ना, अब आगे क्या होगा। बट लाइफ टेक्स अ यू टर्न, इट कम्स बैक, यू गैदर योरसेल्फ, यू स्टैंड अप, बिकॉज मैंने लाइफ में एक चीज हमेशा सीखी है, नेवर गिविंग अप। आई कैन नेवर गिव अप, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल कीप थ्राइविंग, आई विल कम बैक, आई विल बाउंस बैक, बट आई विल डू इट। आई नो मेरा जॉब चला गया, मॉम चली गई लाइफ से विद इन लास्ट 1 year की मैं आपको बात बता रही हूँ। देन ऑल्सो आई वेंट इनटू डिप्रेशन लिटरली। मैं रात में घर में बैठ के अकेली रोती थी, मतलब लाइक अपनी बालकनी में बैठ के, आई यूज्ड टू लाइक क्राई लाइक एनीथिंग, बट आई वाज दैट हेड स्ट्रांग इन माय हेड कि मैं गिव अप तो नहीं कर सकती, है ना। और मैं गिव अप करने बॉम्बे आई भी नहीं हूँ यार, आई हैव टू अचीव अ लॉट मेनी थिंग्स। अभी तो बहुत कुछ करना है, लाइफ है ना आगे, और आपको नहीं पता कितनी लाइफ है, आज है कल नहीं। आप सुबह उठो, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि मैं सुबह उठूंगी इस इंटरव्यू को करने के बाद या नहीं, या मैं अपना ही इंटरव्यू देख भी पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। अरे ऐसे मत बोलो ना। Nobody knows. That's the harsh reality of life. But keeping a positive approach always drives you to do more things. Right. So with a happy face, I have to meet people. With a happy face, I have to greet people. But हर किसी को आप ये भी नहीं बता सकते ना आपके अंदर क्या चल रहा है। हर वक्त आप ये भी नहीं कर सकते, I think. नमिता, इसका कोई सीक्रेट है? जैसे आपने बोला कि विद हैप्पी फेस यू हैव टू मीट पीपल, ये बहुत ही एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो मैं अपने में इनकलकेट नहीं कर पा रही हूँ कभी। मतलब जो भी मेरे मन में चल रहा है वो मेरे फेस पे दिख जाता है बहुत ही जल्दी। मतलब
यू कैन एक कोई मुझे इसका दिमाग गया हुआ है या ठीक नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़, और भी बहुत सारे बाहर लोग होंगे जो इस चीज़ से डील करते होंगे, तो इसका कोई टिप है आपके पास जिससे कि मतलब अंदर चाहे जितना भी तूफान हो बट स्माइल रहनी चाहिए? नहीं है तो नहीं, ऐसा टिप तो नहीं है, देखो टिप तो नहीं है, लेकिन मैंने सीखा है ये कि आपके अंदर तूफान चल रहा हो, इट्स ओके, सी इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। आप हर वक्त तो हैप्पी फेस लेके सबके सामने नहीं बैठ सकते ना, है ना। आप जब आप अच्छे मूड में नहीं हो तो आप उन्हीं लोगों से मिलो जो आपको थोड़ा बूस्टअप कर दें आपकी एनर्जी को, या आपको खुश करने की कोशिश करें। आपको ऐसे लोग चाहिए अल्टीमेटली, हम कितना भी बोले नहीं चाहिए बट हमें चाहिए। सो अच्छी सी कॉफी डेट पे जाओ अपने साथ, जैसे मैं करती हूँ। दैट्स द बिगेस्ट टिप। अपने आप के साथ, अपने आप के साथ गो फॉर सोलो डेट्स यार, फॉरगेट अबाउट बॉयफ्रेंड्स एंड लाइक हस्बैंड, चक इट। हाँ तू अपने घरे बह आने हुने कॉफी पी के। तो मेरी तो बेस्ट पार्टनर मेरी कॉफी रहती है। माय ब्लैक कॉफी इज माय बेस्ट पार्टनर व्हेनेवर आई एम सैड, व्हेनेवर आई एम हैप्पी, आई शेयर ईच एंड एवरी इमोशन विद माय ब्लैक कॉफी। सो दैट्स माय बेस्ट फ्रेंड। मैं मुझे लगता है कि मुझे रात को कोई 2 बजे भी बोले कॉफी, मतलब ब्लैक कॉफी, तो मैं बोलूंगी हाँ, आई कांट से नो टू कॉफी। सो आई गो ऑन सोलो डेट्स ऑन कॉफी। बॉम्बे का कोई ऐसा कॉफी हाउस या कैफे नहीं है जो मैंने ना विजिट किया। राइट, बिकॉज़ व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई हैड नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं था। बट वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क्ड, उसने मुझे दिल्ली से बोल के भेजा था कि जब तू बॉम्बे जाना ना, डोंट सिट एट होम इवन इफ यू डोंट हैव वर्क, गो टू एनी कैफे, गो टू एनी कॉफी हाउस, सिट देयर, वर्क, इवन इफ यू आर थिंकिंग समथिंग, जस्ट सिट देयर। और मैंने वो फिलॉसफी हमेशा अपनाई है। मैं जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ या मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, माय हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे, लेकिन आई डोंट सिट एट होम, आई गो आउट, है ना। आप ऐसे घर में रहो जो आपको रिलैक्स महसूस कराए, लेकिन डोंट सिट एट होम, गो आउट, मीट पीपल, यू फील हैप्पी। बट समटाइम्स कभी-कभी होता है कि आप अकेले बैठना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस टू, बट a sip of coffee can make my mood. Try that next time. Whenever I'm feeling low, I'll just go out for coffee. Not go out. घर में बैठ के भी कॉफी पियोगे तो तुम अच्छा फील करोगे। घर में उसको कैसे समझ लो। ठीक है, डन 100%। हाँ, लेडीज लाउंज का आइडिया भी मुझे ऐसे ही आया था वैसे। अच्छा। मेरे जो अपार्टमेंट में 3 विंग्स हैं, ABC वैसे। एक तो मुझे कॉफी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे कॉफी पे चर्चा करनी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे लगा यार व्हाई अलोन। अब मैं ना रात में कभी-कभी अपने काम से, जैसे आप आ रहे हो, तो बी और सी विंग की जो लेडीज है ना, वो आके मेरे वाले बी विंग में बैठ जाती है, ए और सी विंग की साथ। ठीक है, वो अपना ग्रुप डिस्कशन चल रहा है उनका मस्त, मैं अपना क्रॉस बाइक मतलब जा रही हूँ, लाइक अ ब्रीज ऑफ एयर। मैं पास आउट की वहां से और मैंने हाय हेलो आंटीज को बोला, और मैं अपने लिफ्ट में ऊपर 10th फ्लोर पे रहती हूँ मैं। तो फिर और ऐसे ही रोजाना होता था। मुझे थॉट आया यार, एक दिन मैं कॉफी पी रही थी सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। आई एम एन अर्ली राइजर, और मैं आई गो टू बेड लेट। ओके, मतलब मैं 3 बजे यू अर्ली राइजर? हां, आई हैव अ हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, तो मैं जब उठी सुबह, तो मेरे को जितने भी आइडियाज आते हैं वो तो रात को 12 बजे के बाद आते हैं या सुबह 7 से 8 के बीच में आते हैं। ओके, तो मैं अपनी ब्लैक कॉफी इज माय सेकंड थिंग। फर्स्ट आई टेक चिया सीड्स वाटर एंड देन ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी पीते पीते मुझे थॉट आया यार, ये आइडिया अच्छा हो सकता है कि व्हाई कांट आई स्टार्ट अ न्यू शो जिसमें लेडीज हो सारी, और जैसे वो गॉसिपिंग करती हैं या बातें करती हैं। किस बारे में बात करती हूँ? क्या अपने क्रश के बारे में बात करती हूँ, या किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करती हूँ कि जो उनका हार्ट थ्रॉब रहा हो? टीवी के बारे में बात करती हैं, एक्टर्स के बारे में बात करती हैं। तो मुझे आइडिया कि यार इसको और क्वर्की कैसे बनाएंगे। देन आई think about this idea of calling one celeb who is a male with all around ladies। और देखो कुछ भी कहो, मेल्स को with a bunch of females बैठना तो अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, right? Then I thought about this and I just called up one of my very dear friend in the industry, Sudhanshu Pandey। तो उनको मैंने यूं ही कॉल किया और मैंने बोला कि let's talk with Namita, I'm just planning to start a show। और उन्होंने ये भी नहीं सुना कि कौन सा शो, क्या, कैसे। And he said कि I'll call you। तो उन्होंने मुझे कॉल किया and he said आप जो हुक्म करो, I will say yes। मैंने बोला this is for let's talk with Namita because I have very less subscribers यार अभी। Right. He said कि उससे क्या फर्क पड़ता है? I'm so happy that you are producing this show on your own। Because you need, मतलब I'm telling you how humble he is at this point in time, जब वो यहाँ पहुँच चुके हैं, इतने अच्छे लेवल पे इतना काम कर चुके हैं फिल्मों में, टीवी में। He's Vanraj Shah, अनुपमा। Right. You know about him। 100%. So he said yes,
इन वन गो। तो ये जो हम्बल वाली जो चीज आप मेरे से स्टार्टिंग में पूछी थी, मुझे उनसे भी सीखने मिलती है। राइट। एंड पीपल अराउंड मी लाइक कीप मी ग्राउंडेड कि अच्छा अभी ठीक है, ओके हो गया अभी। तो देन ही सेड यस। अब उन्होंने जैसे यस बोला, मैंने पूरा ये अपना आइडिया प्लानिंग जो मेरी थी कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें ऑल दैट। हालांकि पहले शो में मैं बड़ी पैनिक थी पहले एपिसोड में, एंड व्हेन ही केम टू द सेट ही वाज सो काम, ही वाज सो रिलैक्स्ड। मैंने उनको 2 घंटे के लिए बुलाया था, मुझे याद है, और मैंने उनके 7 घंटे ले लिए, 7 hours यू नो। एंड आई वाज इन गिल्ट, लिटरली मुझे गिल्ट हो गया था कि मैं उनको कुछ खाने के लिए नहीं पूछ पा रही हूँ, है ना। मैं उनको, है ना, कैफे में था हालांकि, बट जो भी हम ऑर्डर कर रहे थे वो बहुत लेट आ रहा था। मुझे लगा यार मैं क्या कर दूं, कि मैं कैसे थैंक यू बोलूं, मैं कैसे रीपे करूंगी, मुझे नहीं पता। बट देन आई वाज सो ग्लैड दैट ही इज बीन सो हम्बल ऑन द सेट, एंड विदाउट इवन रोलिंग हिज आई फॉर इवन वंस, he was just sitting quiet and he said, मैं उनसे बार-बार बोल रही थी यार मैंने आपको बहुत वक्त ले लिया, तो he is like अरे कोई बात नहीं, मैं पूरा दिन निकाल के आया, तो जब तुम्हारा पेट भर जाए तब तुम मुझे बताओ। मैंने कहा यार कितने, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे आप बोल रही थी कि आपकी एनर्जी को कोई ऐसे इफेक्ट कर दे, तो अगर ऐसे लोग हैं तो इतने अच्छे लोग भी हैं। बट उनका कैसा है उनके साथ एक्सपीरियंस? लाइक यू सेड ही इज योर वन ऑफ योर गुड फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड्स। तो उनकी एनर्जी, उनके कोई फनी मोमेंट्स, हाउ ही इज एज अ पर्सन, लाइक ऑब्वियसली वी सी हिम ऑन स्क्रीन, यू नो, उनका जो भी कैरेक्टर प्ले होता है वो उसी में हम देखते हैं, बट एज अ पर्सन हमें पता नहीं है कि उनके साथ कोई फनी मोमेंट हो या कोई भी एनीथिंग यू कैन शेयर विद अस। यार ये देखो, ये शूट मैंने 7 घंटे किया था, फन तो कम और गिल्ट वाले मोमेंट ज्यादा हो गए ना। हालांकि हमने उनकी बहुत ग्रिलिंग की है सेट पे, हमने बहुत ग्रिलिंग की है, सारी लड़कियों ने मिलकर उनको जो है ना धर दबोचा था लिटरली, कि अब ये बताओ और ये बताओ हमें। बट ही इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड गाय, एंड उनके साथ अच्छी कामरादरी है मेरी, एंड उनकी और मेरी अच्छी बात है कि वी स्पीक इन पंजाबी। ही इज अ हाफ पंजाबी and I'm a full Punjabi. My mom, dad both are Punjabis. So he is one guy in Bombay with whom I can speak fluently. Like मैं बिना झिझक के, बिना किसी hesitation के उनसे मस्त पंजाबी में बात करती हूँ, and वो भी मुझसे पंजाबी में बात करते हैं। तो he always addresses me like कुड़िए करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। So he's very very good person and very charming, very handsome, you know. उनका वो जो sharp jawline है, जिसकी मैं सबसे बड़ी fan हूँ दुनिया में। अच्छा, वाह, ओके। ये मैं कहती भी हूँ उनसे। You don't know यार, मतलब ये तो सभी कहते हैं मुझसे, but नहीं, फिर बहुत कम लोग ऐसे हमें सपोजिंगली हमें बोलते बहुत लोग हैं, बट ऐसा होता है ना नमिता, बहुत लोगों की कहने में जब हम कनेक्ट कर जाते हैं कि यार ये तो दिल से बोल रहा है जो बोल रहा है, वो आई थिंक वो डेफिनेटली देयर। हाँ, वो मैं जो भी कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कुछ भी मैंने खरीदा हुआ नहीं बोला है अभी, क्योंकि पैसे तो मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, बिल्कुल एकदम। किस पे हाथ रख के कसम खा लूं बताओ। और ये जो शो है ये हम कब देखा? लाइक ट्रेलर इज ऑलरेडी देयर, तो टीजर इज देयर, टीजर नहीं निकाला है मैंने, टीजर है। तो एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू सुधांशु आल्सो, उन्होंने टीजर मुझे बोला कि ये मैं पोस्ट करा, मतलब बढ़िया। मैं यार इतना अच्छा लगा एक्चुअली, बोला अरे आप मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो, तो ही सेड नहीं इट्स एक्चुअली गुड। तो उन्होंने खुद फिर पोस्ट भी किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। दैट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट ही हैज प्रोवाइडेड टू गेट, है ना। मी बीइंग वेरी न्यू, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है लिटरली, और आपको ऐसे लोग मिलने चाहिए आई थिंक जो आपको सपोर्ट करें, और इसी तरह से मुझे लगता है लाइफ में आप आगे भी बढ़ते हो ना, दैट्स सपोर्ट यू नीड। सो या अभी टीजर आया है, मोस्टली बाय नेक्स्ट वीक आई विल बी लॉन्चिंग द शो। करना पहले था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, some new things my marketing team was doing, my graphics team was doing, so they said मैम अभी होल्ड करते हैं इसको थोड़े दिन के। इसके लिए लाइक अलग इंस्टाग्राम रहेगा या लाइक यू आर हैंडलिंग ऑल द लाइक पोस्टिंग अबाउट टीजर एंड एवरीथिंग on your Instagram profile? No, not on that. I will be doing some things on my personal also, Instagram and every other social media platform. But then अलग से भी इसका पेज रहेगा। राइट। और जैसे नमिता, मैंने देखा है आपने लेट्स टॉक विद नमिता पे आपने नील नितिन मुकेश जी का किया है इंटरव्यू, देन सुधांशु इज देयर, देन उर्फी जावेद इज देयर। इन सब के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मैंने एक उर्फी जावेद जी का जिसमें आपने उनको क्वेश्चन पूछा था कि मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली, जिनके बारे में उन्होंने बोला कि ये उर्फी जी ने बोला था उनको, और देन उन्होंने काउंटर करके बोला एस्ट्रोलॉजर जानवी गौर, ओके, टैरो कार्ड रीडर। हां, आई डोंट नो अबाउट
क्योंकि I took the interview of Janvi also, ऐसी वर्चुअल करी थी, वो दुबई में रहती हैं क्योंकि, तो they all were the part of creators on Amazon. ठीक है, तो I was asking कि तो वो उर्फी के बारे में बोल रही थी कि यार उसने मुझे बुलाया था, she's a liar, this and that, है ना, क्योंकि इस तरह के जब रियलिटी शोज होते हैं तो थोड़ी कंट्रोवर्सी तो चाहिए ना यार, थोड़ा तो मुझे लगता है। और ये लोग ने भी बोला कि एडिटिंग में भी स्क्रिप्टिंग था, हमने जो बोला वो दिखाया नहीं गया। निकिता भी was saying that ना, तो उर्फी was saying कि I am not a liar, she is a liar. एक तो हम दोस्त नहीं, उर्फी ने बोला, ऊपर से what she is saying, उसका मैं बताऊं कि वो किस महित के साथ क्या बोल रही थी, this and that whatever, उसने उल्टा बोला कि मैंने नहीं बोला था, उसने मुझे बोला था। I saw that. It's the other way. So like that. And एक मैंने नील नितिन It's always good to talk to these people because like I'm talking about Sudhanshu and other Neil, Nitin, Mukesh is so talented. Right. Neil, Nitin, Mukesh तीनों हैं उनके अंदर। तीन? So, yes. Mukesh, you know ना, he's a legendary singer. Yes. And उनके जो बेटे हैं वो नितिन मुकेश हैं, उनके बेटे नील नितिन मुकेश। नील है, जी, हाँ। So they have a legacy of this like industry and even Neil is actually taking that legacy forward now. He's so talented and such a humble human being. या उनका भी मैंने देखा, उन्होंने भी एक बहुत सुंदर बात बोली कि आज का टाइम कैसा हो गया, जैसे उसमें भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी कि उन्होंने किसी को खाने अनुष्का सेन से पूछा, मैं उनसे खाने के लिए पूछा था। मीडिया, I mean, मैं खुद भी मीडिया से हूँ, but I feel really sad when media people just for the sake of publicity and the sake of few views and everything, they just घुमाओ the whole twist the story. हाँ, तो कोई सेलिब्रिटी आजकल इसलिए तो लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं जिनको कंट्रोवर्सीज चाहिए या नेगेटिव बात करेंगे, लेकिन जिनको नहीं चाहिए फिर वो शांत रहेंगे ना, वो क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो जरा भी कुछ बोलेंगे तो आप अलग ही तरह से ले लोगे। You should not do that because journalism is not that, ना, it was never this. Journalism was bringing the truth out and you're just covering the truth, hiding the truth and आपको पता भी नहीं है आप उस चीज को आगे उभार रहे हो, तो that's wrong, you know. बट नमिता, आपको क्या लगता है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जर्नलिज्म इतना चेंज हो गया है कि हम सेलिब्रिटीज को लाइक अगर आप इतना ही प्रेशर और इतनी स्टोरीज को ट्विस्ट करते रहो तो फ्यूचर में तो कोई अपना ट्रू फेस दिखाएगा ही नहीं, दे विल बी सो फैब्रिकेटेड बिकॉज ऑफ द आउटर एनवायरनमेंट, राइट? वी वोंट बी एबल टू सी द रियल देम बिकॉज उनको भी पता है कि मीडिया हमें ऐसे प्रोजेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए मतलब इसका रीजन क्या है कि इतना सब चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ व्यूज और एनीथिंग? Yeah, because of social media, I mean. And social media. There are pros of social media, but there are negative things also. Because आपकी कौन सी बात कब जाके वो वायरलिटी, जो आजकल एक वर्ड आ गया है ना, कि यार ये वायरल हो सकता है, तो people are just gaining the views and everything. They are not thinking about what's right, what's wrong. There is no definition and thin line between right and wrong. They're just putting what they want. उनको बस कई बार तो फेक न्यूज भी क्रिएट कर लेते हैं। आप कितने मीम्स देखते हो जो सच नहीं होते। AI तो ये जो एक डिफरेंस है ना एक्टर्स और मीडिया वालों के बीच में, मैं कहूंगी अगेन आई एम टेकिंग द नेम, लेकिन वो आ चुका है वो डिफरेंस, है ना। पहले नहीं होता था, पहले स्टार्स तक पहुंचना कितना मुश्किल होता था, 4 इंटरव्यूज नहीं होते थे उनके। आजकल एवरी प्लेटफॉर्म इज लाइक ट्राइंग टू गेट द इंटरव्यू डन, सो दे हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप चाहते क्या हो लाइफ से। ऐसे बड़े मीम है ना, चाहते क्या हो भाई, कहना क्या चाहते हो, तो वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सोशल मीडिया इज प्लेइंग somehow a bad role in that, है ना, कि आपका सिर्फ आप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए सब कर रहे हो, which is not right. और बहुत आई थिंक कम लोग हैं जो ऑर्गेनिकली उस चीज को करना चाह रहे हैं। इस बहुत ही कम लोग हैं। So we can wrap up this interview now. It was beautiful, and as I already said, your energy was so beautiful, and you have like uplift my mood also, like and your insights and the conversation will stay with me. Though I don't know if we will ever be able to connect again, but the energy you have passed it on me, it will stay with me forever, Namita. And you are a beautiful soul, and I wish you all the best with Let's Talk with Namita and your new idea of Ladies Lounge. I want to see you hitting that number, and if we can contribute anyway, I'll be happy to help. And अभी मेरे फैंस हैं ही नहीं, ऐसे मत बोलो Namita. Like I have gained one fan, by the way, that's you. Yes, me, you know? Shelly. I'm so glad. Chayan and Shelly are my fans now. Right. But I am not in a position to give like a message to all my fans.
उसके लिए मुझे कुछ एक्टर्स को लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, यार आप मेरे लिए कुछ कह दो अगर आप मेरे फैन हो। मैंने तो बोली थी कितने, मैंने तो 2-3 बार बोला कि यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल, कि भगवान मैं कहती हूँ ऐसी सोल्स और बनाए ताकि दुनिया ऐसी ही ब्यूटीफुल रहे। और मुझे लगता है कि जब जब मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मैं इल्यूजन में रहती हूँ, कि मुझे लगता है दुनिया बहुत ही सुंदर है और सब लोग मेरे जैसे ही हैं, बट देन आपके जैसे जब लोग मिलते हैं तो वो मेरे उस इल्यूजन को टूटने नहीं देते कि द वर्ल्ड इज स्टिल सो ब्यूटीफुल and we have so such sweet of you, darling. Yeah, and thank you for like adding that beauty to the world, and I hope you spread this infectious energy to whosoever meet you, and we love you for doing this interview and hope to meet you soon in person also now. Definitely whenever you come to Bombay, let me know, and thank you for such infectious energy of yours. I felt so nice talking to you. Thank you for being so humble, so warm, and so calm, making me feel calm. You know, but despite of like being on camera for such a long time, आपने मुझे इतना काम एनर्जी में रखा है ना, मतलब मुझे ऐसा मुझे पता भी नहीं लगा कि ये कब पूरा पॉडकास्ट हो गया, मतलब लिटरली इट वाज सो इजी, इट वाज वेरी इजी फॉर मी। आज मैं अपने सारे दोस्तों को बोलूंगी, तुम बोलते हो तू बड़ी चिल्लाती रहती है, देखो कोई तो है जो कह रहा है कि मैं काम हूँ। अच्छा, हमेशा काम करती रहती हो ना, काम रहना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। आई एम ऑलवेज इन स्ट्रेस हियर एंड देयर वॉन्डरिंग। बट आपको बात करते सुनते कोई नहीं कह सकता कि आप कभी स्ट्रेस में रहते हो। आपकी एक जैसे होता है ना कि बंदे के फेस की एनर्जी आप रीड कर सकते हो, यू आर सो ऐसे कि ओके चिल्ड आउट की हो रहा है, बस भगवान कर रहे हैं आसपास में, इज वर्किंग फॉर गॉड ऑलवेज हैज प्लान्स फॉर यू, यू नो, सो एवरीथिंग इज डन बाय महादेव, यस, गुरुजी, बाबाजी, 100%, who is blessing me, है ना, every time and giving me a right way to go forward and going with the flow. So I think life में ऐसा करते रहें, बाकी तो चढ़ती कला सारे वाले। आप ऐसे हंसते रहो नमिता, and I hope जब भी आपके 1 मिलियन हिट हो जाएं तो हम दोबारा एक बार इंटरव्यू करेंगे। उससे पहले नहीं करते? नहीं, अब तो 1 मिलियन पे ही करेंगे। पक्का, फिर इंशाल्लाह अब भगवान जी को आमीन कहना ही होगा तुम्हारी इस बात पे, क्योंकि मैंने आई विल बी कॉलिंग यू कि बेबी 1 मिलियन हो गया है, अभी हम दोबारा अभी आप खुद ही मुझे कॉल कर देना, और नहीं तो मैं खुद मैसेज कर दूंगी नमिता 1 मिलियन हो गया, चलो इंटरव्यू करते हैं। then keep chasing my social media pages. 100%. I'll keep an eye on that. Thank you, Namita. Thank you so love much. you. Have a good night, and thank you for your time, Namita. Love you. Bye. Yes, I'm shooting, darling. Done. So I will have a good night while shooting. So yeah. अगर कोई ऐसे स्टार या बॉलीवुड एक्टर हो जिन पे बायोपिक बनानी और आपको डायरेक्ट करनी हो तो कौन होंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है घुमा के एकदम लेकिन इसके बारे में ऐसे मैं इमीडिएटली नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि शायद जिनके बारे में मैं बनाना चाहूँ या लिखना चाहूँ उनके बारे में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, बट इंटरेस्टिंग है ये, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग।